السلام جی علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت مولانا رحمت علی مصباحی بول رہے ہیں؟ جی میں بول رہا ہوں. حضرت صاحب خیریت سے آپ ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. حافظ نوشاد صاحب قبلہ آپ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں اطہر حسین قاضی بول رہا ہوں حضرت. جی اطہر حسین قاضی بول رہا ہوں ایم پی سے. اچھا جی 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 فرمائے حکم کر رہے ہیں. حضرت یہ مسئلہ یہ پھنس گیا ہے کہ جو لوگ حج کرنے جا رہے تھے نا، میں نے اجازت دی تھی کہ وہاں جماعت سے نماز پڑھیں امام حرم مسجد نبوی کے امام کے پیچھے. تو اب جی یہ دعوت اسلامی کے لوگ جو مفتی ہیں وہ ان کو مسلمان نہیں مانتے، وہاں کے اماموں کو اور وہاں کے مؤذنوں کو، وہاں کے رہنے والوں کو. جی تو اب میں کیا کروں صاحب؟ میں نے تو کہہ دیا تھا جماعت سے نماز پڑھیں، جماعت سے نماز ہو جائے گی بلا کراہت. جی تو میرا فتویٰ صحیح ہے نا حضرت میں نے جو کہا؟ نہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں مفتی نہیں ہوں. تھوڑا بہت رائے تو دیں تاکہ یہ جھنجٹ. نہیں نہیں بالکل بالکل بالکل. لیکن میں مفتی نہیں ہوں. یہ ہاں سارے لوگ آپ مطلب جو رائے مفتی دیں، حضرات ہیں. رائے دے دیں جو بھی ہو آپ کی. میرا جو میں نے جو کہا تھا صحیح کہا کہ جماعت سے نماز ہو جائے گی. ہاں ہاں بالکل پڑھیں گے. ہاں یہ لوگ برگڑاتے ہیں بلا وجہ کافر بنا دیتے ہیں ہر کسی کو. کیا ہو گیا صاحب ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. یہ دعوت اسلامی والوں کو نہ جانے کیا ہو گیا کہ ہر کسی کو ہر کچھ سمجھ رکھتے ہیں. اس وقت تو حضرت یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ فیس بک اور سوشل میڈیا پہ اتنے لوگ یہ ہیں کہ سب مفتی ہی بن گئے ہیں. مفتی بن گئے یہ کہی آپ نے بات. سب مفتی بن گئے ہیں. جی وہ مفتی ثمر عباس وہ مفتی بن گیا، وہ قاسم اتاری وہ مفتی بن گیا. سب لوگ فتوا دینے لگے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے فتوے کی کوئی فیکٹری کھلی ہو، وہاں سے سب مفتی بن کے آ گئے اور فتوا دینا شروع کر رہے ہیں. اور یہ سب سوشل میڈیا پہ. جیسے کہ فتوا دینا بہت آسان کام ہو گیا. جی جی فتوا دینے کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے لوگ. جی اب ایک گدھے نے فتوا دے دیا، وہ ناگپور کے ابو محمد ارشد ابو محمد، اس نے کہہ دیا کہ جس حاجی نے جماعت سے نماز پڑھی مسلمان جان کے تو وہ کافر ہو گیا. اب بتا تو تمام حاجی کافر ہو جائیں گے نعوذ باللہ من ذالک. جی 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 تو میں نے کہا کہ جہاں اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں وہاں کا امام بدعقیدہ کیسے ہو جائے گا؟ جی صحیح ہے. جی صحیح ہے. جب کلیل شریف کا امام بدعقیدہ نہیں مانتے، ہم اجمیر شریف کا نہیں مانتے، تو پھر ہم وہاں کے امام کو کیسے بدعقیدہ مانے جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے؟ جی 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 کیا خیال ہے صاحب؟ جی بے شک صحیح آپ صحیح فرمایا آپ. یہ کیسا ان لوگوں کا عقیدہ بنا دیا ان لوگوں نے کہ وہاں جا کے نماز مت پڑھنا جماعت سے. تو پھر میں نے کہا جمعے کا کیا ہوگا؟ 7 جمعے آئیں گے جو حاجی کے 40 دن میں. جی اور جمعہ چھوڑنے پر کتنی سخت وعید ہے حضرت، آپ کو تو معلوم ہے حدیث میں کیا ہے. بالکل کیا وعید آئی ہے 3 جمعہ چھوڑنے پر؟ جی صحیح بات ہے. میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے جس نے لگاتار 3 جمعے چھوڑے اس نے اسلام کو پس پوئی ڈال دیا. جی بالکل. تو اب تم حاجیوں کے 7 جمعے چھڑوا رہا ہو پورے 40 دن میں، تو کیا فائدہ ان کا حج کرنے سے؟ جب متواتراً 3 جمعے کا یہ عالم ہے تو 7 جمعے کا کیا عالم ہوگا؟ پھر تو وہ اس کا اسلام تو وہیں چھوٹ گیا حرم میں. اب یہاں تو واپس آ رہا ویسے ہی ہے. جی سر. حضرت یہ قوم کو گمراہ کر رہا ہے ایسا لگ رہا ہے دعوت اسلامی والے. ریاض قاضی نے اپنے بال کو بال مبارک کے کر بٹوا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک سے برابری کی. مشہور ہے نا، آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ بہت. جی. اور اس نے اپنا میلاد نامہ پڑھوایا، لبیک اتار کے نعرے لگوائے. فیضان سنت میں لکھا ہے صفحہ نمبر 27 میں، دیوبندی بریلوی اہل حدیث جتنے بھی ہیں موجودی سب کے سب جنتی ہو گئے اس کے اجتماع میں جانے سے. ہاں لکھا ہے صفحہ 27 میں. نام تو نہیں لکھا دیوبندی بریلوی کا، لیکن لکھا ہے کہ جتنے بھی لوگ شریک تھے سب کی بخشش ہو گئی، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. اور تعجب یہ ہے کہ جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی، یہ بھی لکھا ہے. اب بتائیے کہ جو اس کے اجتماع میں گیا، چاہے وہ دیوبندی ہو یا بریلوی اہل حدیث مودودی، سب جاتے ہیں ایک دوسرے کے اجتماع میں، آپ کو تو معلوم ہے. جی جی جی. لکھا ہے اس میں صفحہ 27 میں کہ ایک آدمی اٹھ کے آ گیا تھا، تو جب وہ سویا تو اس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا، ارے نادان، کل رات لانڈی کے قبرستان میں جو ہوا اس میں جتنے لوگ آخر تک شریک رہے سب کی بخشش ہو گئی. اگر تو نہیں آتا تو تیری بھی بخشش ہو جاتی. جی. اب بتائیے کتنی بڑی توہین کی. یہ الیاس قادری نے خود خواب لکھا ہے
और लिखता है कि ये हल्फिया इस्लामी भाई का हल्फिया बयान है। जब हल्फिया बयान का मतलब ये होता है कि कसम खा के बयान दिया है, तो फिर ये नई किताब में से ख्वाब क्यों कटवाया जब कसम खा के बयान दिए थे किसी मुसलमान ने? जी जी ये खुद इसने गढ़ के लिख दिया कि हल्फिया बयान इस्लामी में, खुद लिखता है, खुद ही ये सब बयान लिख देता है किताब में। जी जी करना है। तो मैंने जो कहा था कि इमाम हरम मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे बिला कराहत नमाज हो जाएगी, तो मैंने सही कहा ना सर? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये लोग शक में डालते हैं, इनको क्या जवाब दूं? जो लोग कहते हैं वहाँ पर इब्न अब्दुल वहाब के मानने वालों की हुकूमत है और ये है वो, इनको हम क्या जवाब दें? जी नहीं, इनको किस तरह से? नहीं तो आप कुछ जैसे जो भी पहचान में या इसमें ही हो मुफ्तियाने कराम, कुछ मुफ्तियाने कराम होंगे, उनसे मशवरा कर लें। मशवरे में तो क्या है कि वो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि जो आला हज़रत ने लिखा हम तो वही मानेंगे बस, यानी फिर वो कुरान हदीस का जिक्र ही नहीं करते, बस वो इस पे आ जाते हैं जो आला हज़रत ने लिखा वही मानेंगे हम। अब आला हज़रत के हिसाब से तो वहाँ पर हज करने भी नहीं जा सकते, यानी उनका बरेली से ऐसा भी फतवा है कि इनकी हुकूमत में हजी मत करो, वहाँ से उनके शहजादे का फतवा है। जी जी, तो फिर तो हजी मत करो अगर आला हज़रत को मानो तो साहब। जी सही है भाई कुरान हदीस की रोशनी में जवाब दो ना आप, हैं? हाँ बिल्कुल। हम तुमसे थोड़ी करेंगे देवबंद वाले उलमा के हिसाब से जवाब दो या बरेली के उलमा, तुम तो कुरान हदीस की रोशनी में जवाब दो। जी जी, यहाँ देवबंदी और बरेली और कुरान हदीस की रोशनी में जवाब दो, और ऐसा है ही नहीं कि हाँ कुरान हदीस की रोशनी में मसले का हल ना हो। हाँ, हर मसले का हल है। ये आपने बहुत ऊंची बात की है सर, बहुत ऊंची बात की। जब हर चीज का जिक्र कुरान में है तो आप कुरान की रोशनी में जवाब दो ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर आप मना करते हो कि हाजियों की नमाज नहीं होगी, तो फिर तो 50 लाख हाजियों की नमाज ही नहीं हुई। और इस्तिक्ता करते हैं लोग, इस्तिक्ता करते हैं लोग, तो यही लिखते हैं ना, लास्ट में यही लिखते हैं कि बराए मेहरबानी या जो भी हो, जो भी अल्फाज इस्तेमाल करते हो कि कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब इनायत फरमाए। लेकिन वो नहीं करते, वो आला हज़रत पे ले आते पूरा। ये थोड़ा लिखते हैं कि आला हज़रत की रोशनी में जवाब इनायत फरमाए या फलां के। लेकिन वो लोग तो जो मुफ्ती है ना, वो तो आला हज़रत की बात करते हैं ना फिर बाद में। जी जी जी, असली में मुफ्ती लोगों को ये डर हो गया है कि अगर हमने ये कह दिया कि काबे का इमाम मोमिन है, मस्जिद नबवी के इमाम मोमिन है, नमाज हो जाएगी, तो इन्हें ये डर है कि हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा। आपने हाँ जी जी जी, ज्यादातर तो यही है। ये बहुत आजकल जो फतवे सादिर हो रहे हैं, जो मुफ्तियाने किराम फतवे दे रहे हैं, तो इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मतलब चेहरे देख के फतवे दिए जा रहे हैं। अरे क्या क्या बात की हजरत, आप तो रोशन ज़मीन है माशाअल्लाह। बिल्कुल, ये आपने बात की हजरत। अगर इलियास काजी यहाँ के आलिमों को 2-2 करोड़ रुपए दे देना तो उसको वली बना देंगे बहुत बड़ा दुनिया का, कह देंगे कि दुनिया का इस वक्त का सबसे बड़ा बुजुर्ग ये है। एक वो चीखता चिल्लाता बहुत मुकर्रिर, वो तो कह रहा था इलियास काजी का सीना मदीना बना हुआ है, यानी ऐसी तारीफ कर रहा हूँ। एक मैंने स्टेटमेंट सुना था, इलियास कादरी साहब का ही स्टेटमेंट सुना था मैंने। किसी ने मजमे में सवाल किया था, इनका जो इज्तिमा होता है उसमें किसी ने सवाल किया था, उसमें एक रुक्का लिखा था, पर्ची दिया था, तो उन्होंने कहा कि ये मतलब कुफ्र शिर्क का मसला जो है वो मुफ्तियाने किराम के जिम्मे है। हाँ। ये उनके ऊपर छोड़ दीजिए, हम कुफ्र शिर्क और इस सब के फतवे देने के लिए नहीं है, हम सिर्फ सुन्नत पे मतलब सुन्नत की तबलीग करने के लिए है। तो आज कैसे फिर कुफ्र शिर्क के फतवे देने लगे? ये क्या बात की है? अब तो वो खुद ही फतवे दे रहा है, यही मैं कहने वाला था, अब तो खुद फतवे देने लगा वो। जी जी, जबकि जाहिल मुतलक है, नालिम है, नकाली है। हाँ जाहिर है ना, वो खुद कहता है कि मैं एक दिन कहा कहीं नहीं, वो खुद कहता है मैं एक दिन मदरसे में नहीं पढ़ा, तो अब क्यों फतवे दे रहा है? जो आप बता रहे हो बात सही है, जाहिर है। जब पहले तू ऐसा कह रहा था, अब तू खुद मुज्तहिद मुतलक बन के बैठा और जवाब दे रहा है। जी, मुताला कितनों की हो जाए, हाँ फतवा देने का हक हम किसी ऐसे अहले गैरे को तो है नहीं। अरे हजरत फाजिल बरेलवी ने खुद कहा है कि मैंने एक तबीब हादिक की खिदमत में रह के 7 साल इफ्ता नवीसी की है। जी, इफ्ता नवीसी की 7 साल फाजिल बरेलवी कहते हैं, एक तबीब हादिक की खिदमत में रह के हैं जी। और जी। ये मरीज लाहिक की खिदमत में रहा होगा ये इलियास काजी, तो आज के मसबूक लाहक हो चुका है वो बिल्कुल।
हजरत वो तो उसने तो ये लिख दिया है, किताब में लिखा है सफ़ा 28 में कि एक औरत ने टीवी निकलवा दिया था तो उसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ औरत को, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तूने मेरे सबसे बड़े दुश्मन को आज निकलवा दिया यानी टीवी को, और इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचा देना। अल्लाह के रसूल क्या औरत के जरिए से सलाम पहुंचवाएंगे इसको? ये लिखा है सफ़ा 28 में लिखा है साहब। अब ये फैजान सुन्नत में लिखा है कि ये किताब अल्लाह के रसूल की बारगाह में मकबूल है, सफ़ा 3 में लिखा है। जब मकबूल की है किताब तो फिर ये नई किताब फैजान सुन्नत में से ये ख्वाब क्यों निकलवाए डर के मारे? नहीं हजरत बताओ ना, जब ये किताब अल्लाह के रसूल की बारगाह मकबूल थी तो फिर ये ख्वाब कटवाने का क्या मतलब है? जी जी, जो जिस पर एतराज हुआ ना इन्होंने कटवा दिया नई किताब में से। जी जी, लेकिन न आज तक कलमा पढ़ा इसने, न तौबा किया, न तजदीद ईमान किया। अब हजरत आप जानते होंगे जो अल्लाह के रसूल की तरफ झूठ बांधे उसके बारे में क्या हुक्म? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्या हदीस है वो बताइए हजरत, आप हदीस जो हुजूर की तरफ झूठ बांधे। जी सही बात है। वो हदीस है ना, हुजूर ने फरमाया जो मेरी तरफ झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, जहन्नम में बना लेते। जी सफ़ा 27 में इसने साफ झूठ बांधा अल्लाह के रसूल की तरफ कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो भी लांडी के कब्रिस्तान में इज्तिमा में शरीक रहा सबकी बख्शिश हो गई। जी, अब तो ख्वाब इसने कटवा दिया नई में से। भाई ये ख्वाब के ऊपर इसने कब कलमा पढ़ा, कब तौबा किया वो तो बताओ। जी जी सही है। और जी, पहले सही है। कहते थे टीवी को मारो शैतान को और अब घर घर में रखो शैतान को, मदनी चैनल देखो था। जी आपने भी सुना होगा ना मदनी चैनल का बहुत ज्यादा चल रहा है। जी 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 जी, मैंने सुना है। अब उसकी तबलीग कर रहे हैं और इलियास काजी ने लिखा है कि जो मदनी चैनल देखेगा इंशाल्लाह वो बाक़ी जिन्ना दिलाएगा यानी जन्नत में जाएगा, बाक़ी जिन्ना दिलवाएगा मदनी चैनल। हाँ, यानी अब मदनी चैनल देख लो जन्नत में चले जाओगे, ये लिखना है उसने। जन्नत में चले जाएंगे। जी, वसाइल बख्शिश में लिखा था। हजरत जी अपने आदमियों को 50-50 हजार रुपए दे के खरीद लिया इन्होंने, एक एक आदमी को 50,000 रुपए तनख्वाह देना है। जी यानी यही ज़कात सबके खैरात करके जमा करके उसको हीला करके और ये अपने आदमियों को बांट रहा है साहब। और जो कहीं पर बच्चे रख लिए दिखाने को मदरसे के ताकि लोग समझे कि हम हीला करा रहा है, वो तो एक बहाना है हजरत उनका बच्चे रखना, वरना तो ये अपने दलालों को दे रहे हैं बस। जी जी। अब क्या हजरत ऐसे जायज है ज़कात सबसे जमा करके गरीबों का यतीमों का हक मार के अपने आलिमों को देना, अपने मौलवियों को देना, तो ये जायज होगा क्या? नहीं बिल्कुल जायज नहीं होगा। नहीं होगा ना जायज ना, बिल्कुल जायज नहीं है। हाँ, और ये आलिमों की कदर नहीं करते हजरत ये लोग, अत्तारी लोग। उसी आलिम की कदर करते हैं जो इनकी हिमायत करता है, उसी आलिम की कदर। एक मरतबा मेरा साहबका हजरत इलाहाबाद में मेरा पढ़ चुका है। वो ऐसे ही मतलब हर असर के बाद वो बयान करते थे और फैजान सुन्नत पढ़ा करते थे। तो एक साहब थे, तो मैंने वहाँ आर्जी तौर पे मेरे भाईजान थे, तो वो इमाम थे वहाँ के। कहीं जाने लगे तो उन्होंने कहा कि हाँ 2-4 रोज के लिए आप ये नमाज पढ़ा दें। मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ा दूंगा। तो जब मैं गया तो वो असर बाद वही ये करने लगे। मैंने कहा कौन साहब हैं आप? तो कहा कि मैं मुबल्लिग हूँ और ये है। मैं कहा कि आप तालीम क्या है आपकी? तो हाँ, तो कहा कि हजरत बस हम लोग तबलीग करते हैं और ये करते हैं, मतलब सुन्नत की बात बताते हैं और ये करते हैं। मैं कहा किताब देख के आप पढ़ सकते हैं, किताब देख के आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसे आप कोई बयान नहीं करेंगे, इसलिए कि आपको हक नहीं है। जब आप आलिम नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है, आलिम नहीं है, तो आप कितने भी काबिल हो जाएं, लेकिन आप ऐसे कुछ नहीं कर सकते। क्या बात है, क्या बात है, बहुत हाँ, मैंने रोक दिया। मैंने कहा कि आइंदा जब तक मैं हूँ तब तक आप ऐसे बयान नहीं करेंगे। आप किताब देख के पढ़, आपको ये हक ही नहीं है। हाँ, किताब देख के जो पढ़ना है वो आप पढ़िए। वो फैजान सुन्नत क्यों पढ़ रहा है जिसमें झूठे ख्वाब है? वो किताब पढ़ने की क्या जरूरत है? हाँ, मैंने उस पर कोई एतराज नहीं किया। अब चूंकि मैं तो 2-4 रोज के लिए था, लेकिन मैंने कहा कि कहीं भी आप जाएं तो आपको ये हक नहीं है। हाँ बिल्कुल हजरत हमने हदीस से साबित किया काबे के इमाम मस्जिद नबवी के इमाम का मोमिन होना। मैंने कहा हुजूर का फरमान है इक़राउल कुरान बिलहूनिल अरब, कुरान ऐसे पढ़ो जैसे अरब वाले पढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल ने उनकी नकल का हुक्म दिया तो वो मोमिन है, जब तो अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया। जी। और हुजूर ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुमने बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। जी। तो जो कुरान इतना अच्छा पढ़ते हैं इमाम हरम मस्जिद नबवी के इमाम जब सीखते हैं जब तो पढ़ते हैं वो। इमामत के शराइत में से भी तो यही है हुजूर। क्या?
नहीं, इमामत के शराइत में से तो भी यही है ना कि हाँ, जो अगर इमाम है तो जो सबसे बेहतर कुरान पढ़ता हो, हाँ, वही इमामत करेगा। क्या बात है, क्या बात है हजरत, बिल्कुल बिल्कुल। वो आलिम भी है वहाँ के इमाम जी, और बड़े बड़े आलिम होते हैं हजरत, आपको तो मालूम होगा कितना अच्छा जी कुरान जी, पढ़ते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं, उन जैसा कुरान कोई पढ़ सकता है इंडिया में? नहीं हजरत, आप बताइए क्या मस्जिद नबवी के इमाम की तरह कोई इंडिया में करत कर सकता है? नहीं नहीं, कोई नहीं। तो फिर जब इतना बेहतरीन वो कुरान पढ़ते हैं तो काफिर कोई काफिर है पढ़ लेगा साहब? ये तो कहते हैं काफिर भी पढ़ लेते हैं कुरान। जी, मैंने कहा लाओ ना एक बहरहाल, काफिर को लाओ जो कुरान पढ़ ले, अच्छा ऐसा कुरान पढ़ ले जैसे इमाम हरम पढ़ता है, तो हम उसको 1 लाख रुपए दे दें, 2 लाख रुपए दे दें, लेके जाओ किसी को। हाँ? हजरत आप बहरहाल बताइए जी। हुजूर, जी मैं मुफ्ती तो नहीं हूँ, मैं मुफ्ती नहीं हूँ। बहुत अच्छी लगी और आपसे करके अब कुछ सीखने को मिला, इसलिए मैंने इतनी देर नहीं हजरत, शुरू कर मैंने ली एक और आपसे। हदीस बताया मस्जिद नबवी जी। के इमाम के मोमिन होने की दलील में। मैं क्या हुजूर जी। का फरमान है, नुस्रत तो बिर्रौब मसीरत शारिन, अल्लाह ने मेरी जी। रौब के जरिए से मदद फरमाई 1 महीने की मुसाफत की दूरी तक। जी जी तो जब 1 महीने की मुसाफत की दूरी तक सारे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोब है, तो मस्जिद नबवी का इमाम तो बिल्कुल करीब है। जी, बिल्कुल अगर बिल्कुल। आप अल्लाह के रसूल का हयातुन नबी भी मान रहे हो, फिर ये भी मान रहे हो कि हुजूर का रोब को तस्लीम नहीं कर रहे। जी हम तो ये मान रहे हैं कि अल्लाह के रसूल का रोब आज भी बरकरार है और मस्जिद नबवी का इमाम बदअकीदा में खड़ा नहीं हो सकता है मस्जिद नबवी में। जी, बिल्कुल जी। अगर तो IC में भर्ती हो जाएगा कि नहीं अगर मुसल्ले पे आ गया ऐसा बदअकीदा इमाम तो। जी सही है, बिल्कुल सही। बस अल्लाह के रसूल आराम फरमा रहा है। जब ये कैसे कैसे अकीदे बनवा रहे हैं दावत इस्लामी वाले। एक तरफ जो है कि अल्लाह के रसूल का इख्तियार भी बयान करते हैं, फिर अल्लाह के रसूल की मस्जिद के इमाम को भी मुसलमान नहीं मान रहे दावत इस्लामी के मुफ्ती लोग। जी, तो मैं तो कहता हूँ कि दावत इस्लामी के मुफ्तियों को रद्द कर देना चाहिए, बिल्कुल बाइकाट कर देना चाहिए। तो हजरत जी आप बिल्कुल। कब फारिग हुए थे हजरत? आप वहाँ से मुबारक। मैं अल-जामिअतुल शफिया से 2006 में हमारी फरागत है। अरे आपकी तो खुद और चलेगी फरागत है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, और फिल वक्त मेरा मशगिला मैं रिपोर्टर हूँ हजरत इनकलाब का। इनकलाब पेपर जी था, अखबार का इनकलाब। जी जी नहीं जी जी माशाल्लाह, आपके नजरिए से मुझे बड़ी खुशी हुई कि एकदम किसी जी, को काफिर कहना नहीं चाहिए जब तक कि किसी का सबूत न मिल जाए कुफ्र का। बिल्कुल बिल्कुल सही। जी जी, क्योंकि यही जब कहना चाह रहा था। यजीद जी को फाजिल बरेलवी ने काफिर नहीं कहा, जबकि उसकी खबासत दुनिया में मशहूर है, उसकी जी पूरी दुनिया में खबासत मशहूर है, उसके नाम पे कोई नाम नहीं रखता, फिर भी काफिर नहीं कहते बरेली वाले। तो भाई इमाम हरम में मस्जिद नबवी के इमाम में ऐसी कौन सी खबासत है कि जो तुम उसको एकदम काफिर हैं? जी जी, और बिल्कुल बिल्कुल। मैं कि हजरत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह को तमाम देवबंद बरेली वाले मुसलमान वली मानते हैं, जब उनके जी ऊपर फतवा लगा था कुफ्र का। लेकिन जी उनकी विलायत से जाहिर हो गया कि ये अल्लाह के वली थे। जब उनका इंतकाल हुआ, शहीद हुए, तो उनके जिस्म जी से अल्लाह अल्लाह की जो आवाज आई, तो जब लोगों जी को मानने में आया कि ये अल्लाह के वली थे। और देवबंद बरेली वाले जी दोनों वली मानते हैं हजरत मंसूर हल्लाज। तो अगर ये ऐसे फतवे मनवाते हैं कि साहब जिस पर कुफ्र का फतवा है तो मानना पड़ेगा, तो हजरत मंसूर हल्लाज पर भी तो कुफ्र का फतवा था, फिर उन्हें वली क्यों मान रहा? क्या ख्याल है सर? जी, सही बात। जी नहीं, फिर बिल्कुल उनकी सही। जी तौबा बिल्कुल कहाँ सही। है? उन इस्माइल जैलवी के बारे में तो फाजिल बरेली ने लिखा है कि उनकी तौबा हम तक आ चुकी, हम काफिर नहीं चाहेंगे। तो मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह की तो कोई तौबा मिलती भी नहीं है किताबों में। जी सही है। फिर ऐसे तो तुम जिसको चाहो हजरत काफिर बना दो। क्या ख्याल है जी, हजरत? एक बात बस ये हजरत, मैं कुल मिला के मैं ये समझता हूँ कि बस ये क्या बोलते हैं कि फतवे की और मुफ्तियान किराम की एक दुकान खोले हैं जो लोग। हाँ। हाँ, इनकी दुकान अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। बस ये अपनी दुकान चलाने के लिए ये सब सारे लोग कुछ ये कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जो हैं। हजरत आपको भी तजर्बा होगा, मुझे भी है कि मुबारकपुर में भी बहुत सारी रिश्तेदारियाँ अशरफिया वालों की और लोगों की भी देवबंद वालों में हैं। जी, आपको मालूम होगा अच्छी तरह कि मुबारकपुर में भी सुन्नी देवबंदियों की रिश्तेदारियां हैं कि नहीं आपस में? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। और आजमगढ़ तो टोटल सुलकुल्ली इलाका है, आजमगढ़ खास शहर। जी जी यानी जामा मस्जिद में नमाज पढ़ी मैं, देवबंदी बरेलवी एलर्जी सबके लिए इजाजत है वहाँ पर, आजमगढ़ की जामा मस्जिद।
हजरत ये साबका मेरे साथ खुद पड़ चुका है, आपको पता है, मैंने बताया भी और आपको इल्म में भी है कि मैं खुद 2006 में हमारी फरागत है, मैं मिसबाही हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझ पे मतलब बहसियत रिपोर्टर एतराज किया और ये किया मैं कि हाँ मतलब आप सबके साथ मिलते हैं और ये है, सबके यहाँ आना जाना है। मैं कहा हाँ बिल्कुल आना जाना है, हाँ बिल्कुल आना जाना है। और इससे अगर मतलब कुफ्र साबित हो जाए तो फिर इंसान दुनिया में रह ही नहीं पाएगा। अरे फिर जामे अजहर मिस्र में हो जाए फिर। जी नहीं, जामिया जैसे आप पर जो लोग इतरा करते हैं उनसे कहो कि जब मेरे ऊपर इतरा करो तो जामिया अजहर मिस्र जाने वालों पर भी करो। जी आपको तो मालूम है जामिया अजहर मिस्र आजाद इदारा वहाँ देवबंदी बरेली एलर्जी। एक मुफ्ती साहब ने मुझसे वो कहा था, मैंने बर्जस्ता उनको जवाब दिया कि पहले आप अपने आप को दुरुस्त कर लो। जिस फतवे के जद में मुझे ला रहे हो, उसी फतवे के जद में आप भी हो। आप भी है, बिल्कुल बिल्कुल। आप भी हो, आप पहले अपने आप को दुरुस्त कर लो, उसके बाद आप फतवा देना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की हजरत। जामिया अजहर मिस्र में तो सब साथ में पढ़ते हैं, एक साथ में देवबंदियों के साथ में। लोग बरेली जाते। ये बरेली का जो पीर गया था वहाँ पर एक पढ़ने के लिए, वो कहा गया अभी नई उम्र के पीर हैं बरेली के, अभी ज्यादा उम्र नहीं उनकी। बरेली के पीर साहब गए थे, 26-27 साल की उम्र है, अभी पीर साहब हो गए। वो खुद जामिया अजहर पढ़ के आए वो। और एक वो पीर साहब रामपुर के हैं, उनके लड़के पढ़ के आए, रामपुर के बहुत बड़े पीर थे वो उनके लड़के अजहर जामिया अजहर। तो मैंने कहा जामिया अजहर में तो सब पहले खड़े होते हैं, हय्या अल सलाह से पहले खड़े होते हैं, अंगूठा नहीं चूमते। फतावा हुसाम हरमैन को नहीं मानते तो फिर जामिया अजहर क्यों जा रहे हो? जी सही है। जब तुम एतराज करते हो देवबंद वालों के साथ, खाओ मत पियो मत बैठो मत, तो फिर तुम जामिया अजहर में जाके क्यों ऐसी तैसी करा रहा हूँ? क्यों पढ़ते तुम? जी यानी मैं इसलिए पढ़ते हो कि सोचते हो कि इंडिया के लोग जा नहीं पाएंगे जामिया अजहर में, हमारा राज फाश हो नहीं पाएगा, हमारा एक जाहिर नहीं हो पाएगा। क्या ख्याल है? क्योंकि अब वीजा बना के तो कोई जामिया अजहर जाएगा नहीं, हर आदमी के पास तो इतना पैसा है नहीं। तो ये सोचते हैं कि जामिया अजहर चल जाएंगे तो हमारे लोगों को बेवकूफ बना देंगे इंडिया में आके कि वो तो सब सुन्नी है। जी जी ये हमारे यहाँ अशरफिया में हमारे खुद अजहरी, बहुत सारे अजहरी हैं। अब इनसे पूछो तुम किसके पीछे नमाज पढ़ के आओ जामिया अजहर में? जी सही है। नहीं, अगर इनसे पूछा जाए कि क्या वो हय्या अल सलाह पे खड़े होते थे, क्या वो अंगूठा चूमते थे, क्या वहाँ जुमे की अजान बाहर होती है, वो जुमे की अजान अंदर होती है जामिया अजहर मिस्र में? अच्छा, मैंने मालूम सब तहकीक कर ली, मैंने सब मालूम है। वो फतावा हुसाम हरमैन को बिल्कुल नहीं मानते वो लोग, उससे हाथ भी नहीं लगाते आमतौर से। वो तो वहाँ पर चलती नहीं किताब वो। और इक्का दुक्का कोई नहीं देखियो तो देखियो। तो ये आपके जो अशरफिया में पढ़ाते हैं मौलाना हबीबुल्लाह साहब अजहरी, मौलाना हबीबुल्लाह साहब अजहरी जी, ये तो खुद नहीं जामिया अजहर में 4 साल पढ़ के आए। वो कह रहे थे कि मैंने तो कुछ ऐसा मामला ही नहीं देखा जैसे इंडिया में होता है, अंगूठा चूमना या हय्या अल सलाह पे खड़ा होना या कब्रिस्तान से अजान होना, अजान का देना, ये सब नए नए फार्मूले इन लोगों ने बना लिए हैं बहुत सारे आज के जमाने में। जी एक पहचान के लिए कि ये देवबंदी ऐसा करता है तो हमें ऐसे करना है। बहुत सारे हैं। अभी मौलाना अब्दुल्ला साहब हैं, वो हमारे क्लब साथी रहे हैं। वो भी मौलाना हबीबुल्लाह साहब के सीनियर हैं। वो भी दोनों लोग साथ ही में रहते हैं, अभी भी साथ में रहते हैं, दोनों लोग यहीं उस्ताद हैं। वो भी अजहरी हैं। वो भी अब्दुल्ला साहब भी अजहरी हैं जी। और जिसने आप पर एतराज किया था कि तुम सबके साथ खाते पीते क्यों, तो कहना ये अशरफिया में एक उस्ताद ऐसे हैं जो नदवा पढ़ के आए, नदवा में पढ़ के आए, वो अशरफिया में उस्ताद हैं अभी भी। नदवा के बहुत सारे लोग हैं। ये क्या बोलते हैं, मेरे हम नाम मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब, वो अभी मुरादाबाद में सरकारी मदरसे में हैं, वो भी नदवी हैं। अच्छा, एक और दूसरे मौलाना मकबूल साहब, वो बहुत पुराने थे, क्या बोलते हैं, उनका इंतकाल हो गया। दिल्ली वाले जी, सालिक मिसबाही। हाँ, सालिक मिसबाही, वो भी तो नदवा से पढ़े हैं। वो नदवा अलजामतुल अशरफिया में उस्ताद थे। कौन, ये मकबूल साहब जी? अच्छा, उस्ताद भी रहे वहाँ अलजामतुल अशरफिया को उस्ताद रहे हैं वो। अरे यहीं से जाने के बाद जी, वो काबिल आदमी थे फिर तो वो। जी। और ये मौलाना नफीस साहब, ये भी तो नदवी हैं। हाँ, मौलाना नफीस साहब भी नदवी हैं। तो ये क्यों नदवा गया? जैसे जो आप पर एतराज जो कर रहा था ना, उसे बता दे कि पहले मौलाना नफीस साहब से जाके पूछे नदवा पढ़ने क्यों गए थे 2 साल तक। वो खुद हाफिज मिल्लत ने अपने 2 शागिर्दों को नदवा भेजा है, एक मौलाना इफ्तिखार साहब को और एक यासीन अख्तर मिसबाही साहब को। जी। फिर तो इनके हिसाब से कोई मुसलमान नहीं रहेगा साहब, क्या ख्याल है जी? अच्छा, अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही भी नदवी थे? हाँ, नदवी थे ना, नदवा पढ़े थे। हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हाफिज मिल्लत नहीं भेजा था।
अच्छा माशाल्लाह। और जी उन्होंने ये पाबंदी लगा के नहीं भेजा था कि तुम वहाँ जाके गोश्त मत खाना, पानी मत पीना, चाय मत पीना, उनसे मुसाफा मत करना, ये पाबंदी थोड़ी लगाई थी। जी जी। अच्छा हजरत ये बताओ, जैसे अगर नदवा कोई पढ़ने जाएगा तो क्या डान बन के या दादागिरी करके पढ़ लेगा वहाँ पर? ना ना बिल्कुल नहीं। अगर उस्ताद आए उसने सलाम किया तो जवाब नहीं देगा? ऐसा होगा क्या शागिर्द? बिल्कुल नहीं ना, बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। देना देना पड़ेगा। चाहिए। जब मैं पढ़ रहा हूँ तो तुम अगर नहीं जवाब दोगे तो भगा देगा वो। जी बिल्कुल। अगर तुम भगा देगा, सही वालेकुम अस्सलाम कहोगे दबी जबान में वालेकुम अस्सलाम, तो वो तो वहाँ तो आलिम है, वो समझ जाएगा कि वालेकुम अस्सलाम ये क्या हाथ तू ना भी आए। जी सही है। अगर तुम जी, ये सही है। यहाँ बहाना बनाओगे वो हमें उस्ताद सलाम करता था, हम वालेकुम अस्सलाम धीरे से जवाब देते थे, तो कोई वहाँ का उस्ताद जी इतना बेवकूफ थोड़ी है कि जो इतना भी नहीं सुन पाएगा तूने क्या जवाब दी। जी बिल्कुल सही। अरे भाई बिल्कुल एक बार सही। चल जाएगा, 2 बार इतना तो हर आदमी समझता है कि इसने सही जवाब दिया कि गलत जवाब दिया। ये जी हजरत सही बहुत है। बहुत झूठ बोलते हैं कि हम वहाँ जाते थे, नदवा में पढ़े तो हम वहाँ जुमा नहीं पढ़ते थे, हम वहाँ चले जाते थे, ये सब बेवकूफ बनाते हैं। अरे जी चलो तुम जी जुमा पढ़ने वहाँ जाते थे, गोश्त किसका खाते थे? नदवा जाके गोश्त किसका खाते? जी सही है। गोश्त तो वही उनका ही जबिया खाते हो। हजरत क्या ख्याल है? हाँ जबीहा वही तो है। जी सही अच्छा है। हजरत ये मना करते हैं जो लोग के इमाम हरम के पीछे नमाज नहीं होगी। अब जब नमाज जी नहीं होगी तो जो हाजी मर जाता है, इंडिया का बरेलवी हो, देवबंदी, एहलियाजी, कोई भी मरे तो नमाज कौन पढ़ता है उसकी? हाँ वही पढ़ाते हैं, जाहिर है। तो फिर तो यहाँ के हिसाब से इनके ऊपर कुफ्र का फतवा लग जाएगा उनके ऊपर, जिसने वो नमाज जी पढ़ी है। जी और सही। फिर वो बिल्कुल उस हाजी की नमाज भी नहीं हुई, जो हाजी मरा उसकी नमाज भी नहीं हुई, बेनमाज की दफन होगी। सही। जी जी यानी कैसे कैसे इनके फतवे हैं साहब। यानी इनके फतवा अगर देखे जाए तो आदमी हज करने में डरे कि यार हज करने जाए कि नहीं जाए। मौलवियों ने पैसा में परेशान कर रखा है। हजरत ये मैंने खुद देखा है कि ये मौलवी जो दूसरों को देवबंदियों से रोकते हैं ना, मना करते हैं, ये खुद उनके घर में जाके खाते हैं, पीते हैं, चंदा लेते हैं, वहाँ जाके रुकते हैं, सब करते हैं लोग। जी बिल्कुल सही। आपको भी मेरा मालूम, भी मुशाहिदा हजरत, मुशाहिदा। जी बिल्कुल। आपका ही मुशाहिदा है ना ये? जी जी बिल्कुल हजरत। हजरत जैसी झांसी में ये अमजदिया से फारिग होके आया था, झांसी मऊ रानीपुर में इमाम है या मुफ्ती है वहाँ जी का, उसकी सगी दोनों बहनें, मैं उसके इलाके में गया हूँ बिजनौर में, सगी दोनों बहनें देवबंदी के घर में, मैं उसके गाँव होके आया हूँ। और वो जी वहाँ के बिल्कुल। कट्टर सुन्नी बना हुआ, सगी दोनों बहनें कट्टर देवबंदी के घर में। जी और बाहर आके कहेंगे यहाँ इनके पीछे नमाज नहीं होगी, इनका निकाह मत पढ़ाओ। तो जब देवबंदी से निकाह नहीं होगा तो फिर तो अरब वालों का निकाह ही नहीं हुआ तुम्हारे हिसाब से, वो अरब वाले तो तुम्हारे हिसाब से वहाँ भी हुए फिर। जी जी तो फिर तो बिल्कुल। बगैर निकाही औलाद पैदा हो रही है मक्का शरीफ मदीना शरीफ में, इनके फतवे से क्या ख्याल है? जी जी बिल्कुल सही। और फिर वहाँ जब निकाह सैयद भी नहीं है। तो हाँ जाहिर है उससे औलाद है तो बगैर निकाह के वो तो फिर वो हरामी ही का लफ्ज कहा जाएगा ना। हाँ हाँ, फिर इनके फतवे से मक्का शरीफ मदीना शरीफ में फिर बगैर निकाही लोग पैदा हो रहे हैं, जो सहाबा किराम की औलाद हैं, सहाबा किराम की जी औलाद है, हजरत अबू बकर सिद्दीक की औलाद वहाँ पर, हजरत उस्मान गनी की औलाद वहाँ पर, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद वहाँ पर है। जब सैयद इंडिया में है तो क्या मक्का मदीने में नहीं है सैयद? हजरत जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जब इंडिया में सैयद है तो क्या वहाँ नहीं है सैयद? जी जी सही। वो सैयद किसके पीछे नमाज पढ़ते हैं? इनसे ही पूछे मुल्ला मौलवियों से कि ये बताओ जो हमारे सैयद हैं, साहबा की औलाद है, वो किसके पीछे नमाज पढ़ते? वो सब उसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं जिनको तुम मुसलमान नहीं मानते। तो तुम्हारे फतवे से तो वो भी मुसलमानियत से खारिज होगा। क्या ख्याल है साहब? जी जी बिल्कुल फिर सही। ये झूठ बोल के क्या कहते हैं, वहाँ सुन्नी बहुत है। कौन से सुन्नी है जो तुम्हारी तरह काम करते हैं वहाँ पर? कोई ऐसे सुन्नी नहीं जिन्हें तुम सुन्नी मानते हो। जी ये सब इंडिया के काम करने वाले वर्कर है, उन्हीं को सुन्नी बताते हैं। वहाँ के प्रॉपर रहने वाले इन जैसे सुन्नी है ही नहीं साहब वहाँ पर। जी वहाँ तो सब ऐसे मुसलमान हैं जो उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद नबवी के इमाम या काबे के इमाम के। वहाँ पर घर में पढ़ने का रिवाज ही नहीं है सर। घर में पढ़ने का रिवाज ही नहीं। जी और अगर घर में पढ़ भी नहीं तो क्या जिंदगी भर जुमा नहीं पढ़ेंगे वो लोग? हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल खुद पढ़ेंगे। फाजिले बरेलवी के खलीफा मरे हैं हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह, 77 साल मरे, मैंने पढ़ा था 77 साल। जी तो क्या 77 साल उन्होंने जुमा नहीं पढ़ा? और ये नजदी हुकूमत बताते हैं 100 साल से है, और उनका इंतकाल तो अभी हुआ है, 40 साल पहले हुआ है। तो 100 साल से तुम नजदी हुकूमत मान रहे हो, तो तुम्हारे हिसाब से तो ये हुआ कि फाजिल बरेली के खलीफा ने भी जुमा ही नहीं पढ़ा 60 साल तक वहाँ पर। क्या ख्याल है सर? जी जी बिल्कुल अगर बिल्कुल। ये कहाँ तक बचेंगे, कहाँ तक बचेंगे? अगर जी। ये कहते हैं वहाँ नमाज नहीं होगी तो फिर इनके हिसाब से कुर्बानी भी नहीं होगी, कि कुर्बानी का गोश्त किसको देके आते हैं? हजरत अब जमाने के लिहाज से बहुत शिद्दत पसंदी के साथ रहना ये बहुत ही मुश्किल अम्र है।
अरे हजरत आप रह नहीं पाएंगे या कोई रह नहीं पाएगा, कोई भी हो। अब कुछ न कुछ मतलब लोगों के फिक्र में तब्दीली लानी चाहिए और वो करना चाहिए। जरूरी हजरत, ठीक है, वो देवबंदी रहे, बरेलवी रहे, एलएदी रहे, अपनी अपनी जगह रहो। अगर तुम्हारा किसी के पीछे दिल नहीं चाह रहा नमाज पढ़ने का, मत पढ़ो, हम भी नहीं कह रहे पढ़ो, मत पढ़ो। लेकिन अगर किसी, ये तो इसमें सुन्नी बरेली और देवबंदी की क्या तख्सीस है? अगर किसी इमाम पे आपका दिल नहीं चाह रहा, जाहिर है उसके पीछे आपकी नमाज नहीं होगी। हाँ नहीं होगी, जब दिल ही कबूल नहीं करो तो नमाज नहीं होगी, बिल्कुल सही। हाँ, अगर आपके दिमाग में ये है कि ये सिरात मुस्तकीम की इस इबारत को मानता है, ख्याल वाली इबारत को मानता है जिसमें ख्याल के बारे में लिखा है कि हुजूर का ख्याल आ जाए, तो पहले तो तस्दीक करो कि सबका ऐसा अकीदा है कि नहीं। हर एक का तो ऐसा अकीदा नहीं हजरत। मैंने भी पूछा देवबंद वालों से, तो देवबंद वालों का खुद ये फतवा उलमा देवबंद का कि अगर हुजूर का ख्याल नमाज में जाएगा तो नमाज हो जाएगी, क्योंकि दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ने में अल्लाह के रसूल का ख्याल आएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। उनका भी उलमा देवबंद का, दारुल देवबंद का फतवा है। बेला वजह अगर कोई ऐसे 2-4 लोग हों जो अकीदे के हों तो आप उनके पीछे मत पड़ो, मगर पहले कंफर्म तो करो, तहकीक तो करो पूरी। आप क्या ख्याल है हजरत? ये अल्लामा तौकीर रजा साहब जो वो वहाँ के बरेली शरीफ के हैं, अरे वो तो सुल्तानुल मुजाहिदीन है। हाँ, वो नदवा गए थे तो क्या मतलब वो अवेला मचा था, ये हुआ था। अरे तो ये वो तो एक बार गए थे ना, ये यासीन अख्तर भाई तो 2 साल पढ़ के नदवा में। जी नहीं, उन्होंने तो अलग ऐलान कहा था कि मुंह मत खोलवाओ मेरा। क्या बात है, क्या बात है। नहीं तो ये स्टेटमेंट था। हाँ, ये भी कहा था कि मत खोलवाओ मेरा, मैं सबको जानता हूँ। नहीं, ये लिखा था कि अगर मेरा मुंह खुला तो पूरे खानदान को कलमा पढ़ना पड़ेगा। हाँ ये भी लिखा था उसमें कि मेरे खानदान की पोती किधर गई है, बेटी किधर गई है, ये भी मैं सब बता दूंगा, ये भी लिखा था उसमें था। यहाँ खुद आए थे, यहाँ वो आए थे, एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें सारे मकातबे फिक्र के उलमा थे। हाँ, और उसके जो मुंतजिम थे वो देवबंदी मसलक के ही मानने वाले, उन्हीं लोगों ने दावत दिया था। अच्छा, और वहाँ अल्लामा तौकीर खुद आए यहाँ और उन्होंने मतलब खुद अपने इस पे स्टेज पे बयान किया। उसमें मैं रिपोर्टिंग के लिए मैं खुद हाजिर था। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने इतना मुझको मजबूर कर दिया कि मुझको आना पड़ा, और मैंने मतलब वो हीला तलाशा कि न जाऊं, लेकिन इन लोगों ने पीछा छोड़ा नहीं, और मैंने कह दिया कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल दो तो मैं आ जाऊंगा। कौन ने कहा? मेरा ये इसलिए कहना था, और अल्लामा तौकीर रजा ने कहा कि मेरा इसलिए कहना था कि किसी तरीके से मुझे वहाँ न जाना पड़े। अच्छा, मतलब बहाने की वजह से बहाना बन जाएगा कि मुझे पैसा नहीं देंगे लोग। हाँ जी, तो इन्होंने फौरन 1 लाख रुपया डाल दिया उनके अकाउंट में। जी, अब ये आए वहाँ 1 लाख रुपया लेके आए और कहा कि ये जो मैंने बहाने से डलवाया था, ये कहा था कि ताकि इससे भी छुटकारा मिल जाए, लेकिन इन लोगों ने डाल दिया। ये जिसने दावत दिया था उनका नाम लेके उन्होंने कहा कि बाबू ये है आपका 1 लाख रुपए, अब तो मैं मजबूर हो गया आपके उसमें, इसलिए मैं चला आया, आप ये अपना पैसा रख लीजिए। वही स्टेज पे ही उन्होंने दिया पैसा। नहीं, वो सुल्तानुल मुजाहिदीन है, बल्कि ये समझ लो कि इस जमाने की शान है, फाजिल बरेली के खानदान की शान है वो, बल्कि सुन्नियत बचाने वाले वही है, फाजिल बरेली के खानदान से इस वक्त। जी, कोई सुन्नियत बचा रहा, सुन्नियत के अलमबरदार है सुन्नत है हजरत मौलाना तौकीर रजा साहब। और उधर से मारेरा के कुतुब जो है, मारेरा में इस वक्त की सबसे बड़ी हस्ती हजरत मौलाना सैयद सित्तर हैदर मियां साहब जी रहमतुल्लाह अलैह, और हजरत मौलाना उबैदुल्ला खान आजमी रहमतुल्लाह अलैह जी, फतीबुल हिंद हजरत मौलाना उबैदुल्ला खान आजमी रहमतुल्लाह अलैह जी। तो आपने रहमतुल्लाह अलैह पे मुझसे कुछ सवाल नहीं किया? नहीं, मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्यों नहीं करूँगा? नहीं, मैंने इसलिए कहा रहमतुल्लाह अलैह ताकि आप एतराज करोगे, वो तो अभी जिंदा है। नहीं, मैं एतराज करूँगा ही नहीं हजरत, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, समझ रहा। आपने दानिस्ता तौर पर रहमतुल्लाह अलैह लगाया, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, आप समझ गए। अरे आपको कष्ट हो गया माशाल्लाह के दानिस्ता तो मैं उन लोगों को जवाब देने के लिए, जब तुम गैर साहबा को रज़ियल्लाहु अन्हु कह सकते हो तो हम उबैदुल्ला खान आज़मी को रहमतुल्लाह अलैह नहीं कर सकते। ऐसे तो हम सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो वो ये जायज, अगर तुम रज़ियल्लाहु अन्हु को जायज बता रहे हो तो हम भी ये जायज बताएंगे। जी। अब तुम कह नहीं, ये मरने वालों की पहचान है, इससे आदमी का इशारा ख्याल वहीं जाता है, तो बस तो रज़ियल्लाहु अन्हु कहने से भी ख्याल साहबा की तरफ जाता है। जी, सही है। मानते हम भी है कि अगर साहबा को रज़ियल्लाहु अन्हु कह सकते हैं, लेकिन जब कहेंगे तो अवाम का क्या होगा? फिर अवाम का दिमाग वो कंफ्यूज हो जाएगा। कल को कोई भी किसी का भी नाम बोलेगा, अवाम सोचेगी क्या मालूम ये साहबी है गैर साहबी है। फिर तो अवाम साहबी को गैर साहबी और गैर साहबी को साहबी समझने लग जाएगी जब तुम सबको रज़ियल्लाहु अन्हु कहोगे। तो। जी, सही है। बिल्कुल। तो अवाम साहबी को गैर साहबी और गैर साहबी को साहबी समझने लग जाएगी जब तुम सबको रज़ियल्लाहु अन्हु कहोगे।
जी सही। वो तो एक उलमा ने लिखा है कि गैर साहबा को रज़ियल्लाहु अन्हु कह सकते हैं, लेकिन उलमा ने लिखा थोड़ी, ये पुराने आलिमों ने सबने रहमतुल्लाह ने लिखा, बड़े बड़े वलियों ने, जी हजरत जी शेख अब्दुल हक साहब ने, इमाम रब्बानी मुजल्लिसानी रहमतुल्लाह, सबने, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने तक तमाम वलियों को, अपने से पहले वाले वलियों को पीराने पीर ने रहमतुल्लाह ने लिखा। तो क्या ये उनसे बड़े वली हैं ये आजकल के आलिम? हजरत क्या मालूम कहाँ से मुज्तहिद बन के आ गए, ये शियाओं की तरह से अपने आलिम, अपने मौलवी लोग, मुल्ला लोग कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कहना जायज है, और इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहते नहीं, जबकि बुखारी शरीफ में इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम लिखा, आपने ही पढ़ा होगा। जी जी पढ़ा है जी कि नहीं? इमाम जी हुसैन को अलैहिस्सलाम जी इमाम जी बुखारी लिखा है। जी जी बिल्कुल। तो उस वक्त क्या ये अंधे हो जाते हैं? जब रज़ियल्लाहु अन्हु पे कहने पर तो इनको दलीलें मिल जाती हैं कि गैर साहबा को रज़ियल्लाहु अन्हु कह सकते हैं, अज़हरी मियाँ को रज़ियल्लाहु अन्हु, तो जब गैर साहबा को तुम रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हो, अज़हरी मियाँ को, मुफ्ती आज़म को, तो तुम्हें इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहने पे दलीलें नहीं मिल रही बुखारी शरीफ में जी जी और मुस्लिम शरीफ में, तिरमिज़ी शरीफ में? और बड़े पीर साहब ने भी इमाम हुसैन को, सैयदा फातिमा ज़हरा को, जितने भी अहले बैत में जो है, हजरत अली, इमाम हसन हुसैन, इनको अलैहिस्सलाम ही लिखते हैं, बड़े बड़े वली कुतुब अलैहिस्सलाम लिखते हैं। जी जी है कि नहीं साहब? सही बात है या नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हजरत अल्लामा सैयद ताहिरुल कादरी साहब, वो भी अलैहिस्सलाम कहते हैं, वो भी शायद अलैहिस्सलाम के कायल हैं। जी जी मैंने सुना भी है, मैंने सुना भी है। सुना है ना? तो मैं तो मानता हूँ जी। दानिश्वरों में, इस जमाने के सबसे बड़े दानिश्वर हजरत अल्लामा सैयद ताहिरुल कादरी साहब, जी वो इस जमाने के बहुत बड़े वो है, इमाम है इस जमाने के। जी 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 और वो कौम को एक करना चाहते हैं कि भाई जो देवबंदी देवबंदी रहो, बरेली बरेली रहो, लेकिन एक होके काम। जी हजरत मोहद्दिस कछोती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, कुफ्र से कुफ्र बगलगीर नजर आता है, क्यों नहीं होते मुसलमान भी मुसलमान के करीब। जी बेशक। जी हमने गैर मुस्लिमों में कहीं भी नहीं सुना कि गैर मुस्लिमों में, अहले हुनूद में कहीं जलसे हो रहे हैं कि ये उनके खिलाफ जलसा हो रहा है, ये उनके खिलाफ जलसा हो रहा है, जितने आज मुसलमानों में एक दूसरे के खिलाफ जलसे हो रहा है और बगावतें हो रही हैं एक दूसरे के खिलाफ। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल ऐसा है, ऐसा है। और हजरत यहाँ एक मर्तबा ऐसा हुआ था कि वो मौलाना ताहिरुल कादरी साहब आए थे यहाँ। अच्छा, तो नहीं सॉरी, ये क्या बोलते हैं, फारूक गया वाले नागपुरी? मौलाना, नहीं गया के मौलाना ताहिर गयावी साहब एक मरतबा आए थे, तो वो कुछ खिलाफ बोल के गए थे। हाँ, हाँ तो ये हुआ कि अब इधर से मतलब बरेलियों की जानिब से भी मतलब एक लंबा सिलसिला चला हजरत प्रोग्राम का। मतलब एक वो रखते थे, फायदा एक क्या ये हुआ? रखते थे। इससे फायदा क्या हुआ? टाइम की बर्बादी हुई। हाँ, तो उसमें हम लोगों ने ये किया हजरत कि दोनों तरफ से जो रिपोर्टिंग में किसी से कुछ कहा नहीं, लेकिन रिपोर्टिंग जो हम लोग कर रहे थे हजरत, दोनों की रिपोर्टिंग कर रहे थे, और उसमें हम लोग सिर्फ अपनी तरफ से ऐसी चीज बढ़ाते थे जिससे आवाम का फायदा हो, और एक चीजें पे तो छाट देते थे, अगर किसी ने बोला भी तो उसको भी छाट देते थे। ये बहुत अच्छी बात की आपने, माशाल्लाह। तो कुछ लोगों ने मतलब 2-3 रोज खबर छपने के बाद कुछ लोगों ने मुझको फोन किया, जो यहाँ के चुनिंदा लोग हैं और ये हैं, हाँ, कि आप की रिपोर्टिंग मैंने देखा, इसमें तो कहीं मतलब जो वो कहते हैं इख्तलाफी चीज है, वो तो कहीं मतलब आपने तहरीर किया नहीं है। हाँ, मैंने कहा कि ये बताइए, जलसे जुलूस का मतलब क्या होता है? फसाद फैलाना थोड़ी है। जलसे जुलूस का मतलब फसाद फैलाना नहीं ना भाई, आवाम की तालीम के लिए और आवाम को उसके लिए करते हैं, तो हमने वही किया है। वो बहुत अच्छा काम किया है। आप लोग ये बंद कर दीजिए, आप लोग बंद कर दीजिए ये जलसे जुलूस और इख्तलाफी ये करना। नहीं, इंशाल्लाह आप दर्जा बहुत, अल्लाह की जाने से बहुत बड़ा दर्जा मिलेगा इस बात पर, क्योंकि आपका जहन ये है कि उम्मत को जोड़ा जाए, तोड़ा न जाए। जी बिल्कुल। अब ये लोग एक हदीस ज्यादा पढ़ते हैं हजरत, हमारे यहाँ बरेली उलमा के हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल ने नाम लेकर थोड़ी फरमाया कि ये जहन्नमी होंगे। तुम तो नाम ले लेकर बताते हो कि नदवी, देवबंदी और ये जामे अज़हर वाले और अरब वाले सबको तुम गिनाने लग जाते हो, हैं? जी। अच्छा, मैंने कहा क्या एक ही हदीस याद है, दूसरी हदीस याद नहीं है? हुजूर ने फरमाया जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। हाँ, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकत कफर। तो मैं क्या वो हदीस क्यों नहीं बताते? बस एक ही हदीस बताओगे 72 जहन्नम में जाएंगे, यानी बेनमाजियों को तुम जो है कि हौसला अफजाई कर रहे हो, बेनमाजियों, शराबियों, जुआरियों की, जुमे की नमाज पढ़ने वाली, और नमाजियों को तुम जहन्नमी बना रहे हो, हैं? जी। अब ये कहते हैं नहीं वो कुफ्र के करीब हो गया। मैंने कहा हदीस में लफ्ज़ करीबल कुफ्र नहीं है, हदीस में साफ है कि फकत कफर। तुम्हारा बताया मतलब मान ले कि कुफ्र के करीब हो गया, चलो वो भी मान लिया जाए, तो क्या कुफ्र के करीब को क्या कम गुना समझ रहा है? नहीं, क्या एक नमाज छोड़ने में हुआ, और जो रात दिन 5 टाइम की नमाज छोड़ना वो क्या हुआ? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल। और हुजूर का दूसरी हदीस अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल जफा कुल जफा वल कुफ्र वन निफाक मन समिया मुनादी अल्लाह युनादी लस्सलाति बला यजीबहु,
कि जुल्म पर जुल्म है, कुफ्र है, निफाक है, जो मुअज्जिन की आवाज सुने वो नमाज पढ़ने के लिए हाजिर ना हो। जी जी। तो मैंने कहा यह हदीस नहीं बताएगा ये इन लोगों को, बस यही बताएगा 72 फरिश्ते जहन्नम में जाएंगे, एक ही वो 72 फरिश्ते जहन्नम में जाएंगे, एक दिन जैसे जैसे यही जन्नत में जाएगा, जन्नत के ठेकेदार बनना है यहाँ पर, हैं? वो 50,000 रुपए लेके तकरीर कर रहा है, वो हम्माद रजा मुरादाबादी हैं, इन जैसे लोग 40-40 हजार रुपए तकरीर कर रहे हैं, ये जन्नत में जाएंगे 40,000 रुपए तकरीर करने वाले, टखनों से नीचे पजामा पहनने वाले। हम्माद रजा कहता है कि फरिश्ता लंगड़ा के चल रहा था, वो हम्माद रजा मुरादाबादी कह रहा फरिश्ता लंगड़ा के चल रहा था। वो कहता है कि तमाम सैयद क़यामत में आला हजरत को ढूंढेंगे। किस हदीस में है कि तमाम सैयद आला हजरत को ढूंढेंगे, हैं? एक बिलग्राम के सैयद साहब कहते हैं, जो बड़ी खानकाह के बिलग्राम के, कहते हैं कि जब दीन फैल गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला हजरत को हुक्म दिया कि ए अहमद रजा अब तुम उठो और दीन का काम करो जी। तो मैंने कहा कि अल्लाह के सुने कब हुक्म दिया है इन्होंने, अल्लाह के रसूल की आवाज कैसे सुनी? यानी कैसे कैसे लोग 2.5 लाख दे रहे हैं और वहाँ पर कुतुब अब्दाल बैठे हुए हैं, जो इस जमाने के कुतुब अब्दाल में बैठे हैं, कोई भी नहीं कर रहा साहब ये आप झूठ मत बोलो। स्टेज पे झूठ बोलोगे तो आवाम का क्या होगा, कि जब हमारा रहबर झूठ बोलेगा तो कौम का क्या होगा? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर जब कौम का रहबर झूठ बोलेगा तो अवाम क्या होगा, क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात मुझे लगी, आपको अल्लाह ताला कुतुब बनाए मुबारकपुर का, और आप अंसारी लग रहा है, मुझे अंसारी हैं है ना हजरत? मुझे हाँ वो आपका मिजाज जो है बहुत ऊंचा है, और ये अंसारियों के अंदर ये सिफत होती है कि वो दीनी मिजाज रखते हैं, दीनी। इस बात को आला हजरत ने भी तस्लीम किया है आकाम शरीयत में कि अंसारी दुआ की दरखास्त है, दुआ की दरखास्त है, दुआ फरमा दें। बहुत अच्छा मिजाज लगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा मुझे भी बात करके। नहीं, मुझे ऐसी आलिमों की जरूरत है जैसे आप आलिम हो, अगर ऐसे आलिम इंडिया में हो जाएंगे ना हर जगह तो इंशाल्लाह उम्मत का इंकलाब हो जाएगा। मगर आप जैसे आलिमों की जरूरत है इंडिया में, हर कोने पे हो, एक दो से कुछ नहीं होगा काम। वो मशहूर है ना, एक अकेला चनक या भांड फोड़े, मतलब ये है कि एक दो आप जैसे अगर हर जिले में हो जाए ना, हर जिले में और हर इलाके में, तो इंशाल्लाह कौम में इंकलाब हो जाएगा, है इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैं अगर इजाजत है तो ये आवाम तक पहुँचा दूँ? जी बिल्कुल, दुआ आप पैगाम पहुँचा दें तो आवाम सुनेगी, तो इंशाल्लाह कौम में एक एकता पैदा हुई है। ठीक है हजरत, मसला ये है कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, इस वजह से मैं माजरत चाहूंगा। नहीं आप हजरात जो लोग हैं, नहीं आपने कोई ऐसी बात नहीं कही है, मैं इससे आवाम तक पहुँचाना ये है कि आवाम फायदा उठाए, जो उम्मत में जो तोड़ पैदा कर रहे हैं ना, आपका हमारा पैगाम, मेरा भी है इसमें, हम सबका पैगाम सुन के आवाम के अंदर ये बात पैदा हो कि वो लोगों को एक पॉइंट मिले कि यार वाकई में बात सही कह रहे हैं। कि जब नदवा पढ़ने जाते हैं तो नदवा में क्यों पढ़ते 2-2 साल, जब दूसरों को मना करते हैं कि उनसे मिलो मत, खाओ मत, पियो मत, क्या ख्याल है सर? जी जी, ये इससे फायदा होगा इंशाल्लाह। ये सर ठीक है, लेकिन ये आवाम तक में आने में हो सकता है कि हमको रिपोर्टिंग के एतबार से कुछ दिक्कत आ सकती है। बहरहाल आप जैसा मुनासिब समझें। नहीं, वो तो कभी ऐसी कोई बात हो तो मुझे आप बता देना, मैं कटवा दूंगा। ठीक है सर जी, आप जैसा बेहतर समझे, लेकिन मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ और नहीं, कोई नहीं, आपने हजरत मौलाना आपने बहुत अच्छा मैंने बात नहीं, आप डरो मत, कुरान में अल्लाह फरमाता है ईमान वालों मुझसे डरो जैसा मुझसे डरने का हक है। नहीं है, आपका इमामुल मंतिक रहे हजरत मौलाना सैयद कौन से जफर अदीबी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो भी नहीं डरे थे। उन्होंने कहा था मैं तस्दीक नहीं करूंगा हरफन बतावा हुसाम लालमन, क्योंकि हरफन तो सिर्फ कुरान को माना जाएगा है। तो एक आलिम की लिखी किताब को क्या हम हरफन माने? वो इसी बात पे तो हजरत अल्लामा जफर अदीबी रहमतुल्लाह अलैह को निकाला गया था मुबारकपुर से। तो इमामुल मंतिक के दुनिया के सबसे बड़े आलिमों में थे इस वक्त के दुनिया के सबसे बड़े आलिमों में शुमार होते बरेली तबके में, समझ लो आप। लेकिन डरे नहीं, तो हमें डरना नहीं है। बहरहाल डरना नहीं है, बस ये है कि अपन ने नाम लेकर किसी पर फतवा नहीं लगाया। बस एक बात जनरल बात थी, हजरत मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी रहमतुल्लाह अलैह ने तो स्टेज पे अशरफिया के स्टेज पे खुलेआम कह दिया था, वो भी नहीं डरे थे। जी, वो तो पीर अबू मियां साहब मुफक्किर इस्लाम जो है सैयद सरावा में, वहाँ भी जाते हैं, गालिबन गए वहाँ, और अशरफिया का स्टाफ भी वहाँ पर गया है। बाद में कहा कि हमें मालूम नहीं था, अभी ऐसे हो गए। अरे बाद में मालूम हुआ तो तुम पहले वाले जो गए थे उससे तौबा करो, कलमा पढ़ो, तजदीद ईमान करो। अगर ऐसी बात है आवाम से क्यों करवाते हो? आवाम से क्यों तजदीद ईमान तौबा करवाते हो? जनाजा पढ़ लिया, तुम वहाँ जाके नमाजें पढ़ो, रुकू सजदे वाली हो, तुम जाके कह दो हमें बाद में मालूम हुआ। तो पब्लिक को कब मालूम है कि किसकी नमाज जनाजा पढ़ना है? क्या पब्लिक काफिर समझ के किसी की नमाज जनाजा पढ़ेगी साहब? अगर पब्लिक किसी काफिर की नमाज जनाजा थोड़ी पड़ेगी। अगर उसे मालूम हो जाए पब्लिक को कि ये इसने साहबा की शान में गुस्ताखी की है या अहले बैत की शान में गुस्ताखी की, तो पब्लिक खुद ही नमाज नहीं पढ़ेगी उसकी।
हाँ ठीक है, तो फिर बाद में राब्ता कर लूंगा मैं। जी 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 इंशाल्लाह। वो तो कोई बात हो तो आप बता देना, मैं इंशाल्लाह फिर निकलवा दूंगा। ठीक है सर? जी 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 ठीक है, सलाम।